বর্ষার এই মরশুমে প্রচুর চা পাতা রয়েছে। এখনই এই চা পাতা তোলা না হলে বাগান নষ্ট হয়ে যাবে। তাই দ্রুত বাগান খোলার দাবিতে শনিবার দুপুর 2টো নাগাদ বানারহাট ব্লকের আমবাড়ি চা বাগানের ফ্যাক্টরি গেটের সামনে সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখালো। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে তৃণমূলের চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বানারহাট ব্রাঞ্চের সভাপতি বিধান সরকার, আমবাড়ি চা বাগানের ইউনিট সম্পাদক সুরজ বিশ্বকর্মা, বিজেপির ভারতীয় টি ওয়ার্কার ইউনিয়নের ইউনিট সম্পাদক হেমশঙ্কর বড়াইক, সিপিএমের চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের ইউনিট সাধারণ সম্পাদক সাবিত লোহার ও কংগ্রেসের NUPWU এর ইউনিট সম্পাদক রেশমা বড়াইক ছিলেন। এদিন সকলেই বিক্ষোভ দেখিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাতে চা বাগানটি দ্রুত খুলে যায়। এদিন নেতারা অভিমান করে বলেন, চা বাগানের শ্রমিকেরা কোনো আন্দোলনে যায়নি, উল্টে চা বাগান কর্তৃপক্ষ সাল ছুটি দিয়ে সকলকে বসিয়ে দিয়েছেন। গত 8ই জুলাই থেকে কাজকর্ম শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মালিকপক্ষ আগের দিন 7ই জুলাই রাতে কোনো নোটিশ না দিয়ে চা বাগান ছেড়ে চলে যায়। গত 10ই জুলাই জলপাইগুড়িতে ডিএলসি অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ছিল, কিন্তু মালিকপক্ষ না আসায় সেই বৈঠক ভেস্তে যায়। এর ফলে ফের বিপাকে পড়ে যায় ওই চা বাগানের 1200 শ্রমিক। শ্রমিকেরা এদিন বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি যতদিন চা বাগানটি না খুলছে ততদিন সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে দেওয়া হয় তার দাবিও তুলেছেন নেতারা। একমাত্র আমবাড়ি চা বাগান গত 8 তারিখ মালিক পক্ষ মজদুর পক্ষের থেকে কোনো রকম কোনো এলিগেশন নেই, মজদুরের প্রতি কোনো কিছু না বলে রাতের অন্ধকারে মালিক ম্যানেজমেন্ট রাতের অন্ধকার এখান থেকে চলে যায়। শুধু চলে যায় নয়, উনি একটা নোটিশ পর্যন্ত দিয়ে যান, ওনাকে মজদুরকে মিনিমাম নোটিশ দিয়ে যেতে হয় যে এখানে বাগান বন্ধ করতে গেলে নিয়ম অনুসার, সেটাও করেনি, প্রশাসনকে মতো জানকারি দেয়নি। আমরা যখনই সকালবেলা শুনলাম, আমি আজ স্বয়ং নিজে আরও আমাদের নেতৃত্ববৃন্দ আমরা সকাল 6টার মধ্যে এখানে প্রেজেন্ট হয়েছি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশাসনও এখানে এসে প্রেজেন্ট হয়ে বাগানের মজদুরের কী পরিস্থিতি সেটাকে নিয়ে আমরা দেখার পর আমরা আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার পর আমরা ফার্স্ট এখানে দেখলাম যে এখানে ফ্যাক্টরিকে কোম্পানি চলে গেছে, ফ্যাক্টরি তো আর আমরা চালাতে পারবো না, এখানে মালিক পক্ষ চাই, যেহেতু মালিক পক্ষ নেই। কিন্তু মজদুর তো আমাদের, মজদুরের ছেলেমেয়েরা যেন স্কুল থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য আমরা স্কুল বাসটাকে চালানোর জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমরা ব্যবস্থা করি। তার সঙ্গে মেডিকেলটাকে যেন হামেশা এখানে ওপেন রাখা যায় তার জন্য আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাই, এখনও খোলা আছে এবং সরকারি তরফ থেকে সে ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং গত 10 তারিখ একটা মিটিং ছিল জলপাইগুড়িতে ডিএলসি অফিসে, সেখানে মালিক পক্ষ আসেনি, না আসার কারণে ওখানে কোনো আলোচনা হয়নি। কিন্তু আমাদের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা জোরালো ওখানে আমরা বলেছি যে এখানটায় জরুরি পরিষেবা সবসময় রাখতে হবে, বিশেষ করে স্কুলের বাস পরিষেবা এবং মেডিকেল ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা ওনারা বচন দিয়েছেন, করার চেষ্টা চলছে। আমার কথা হচ্ছে কি, দোষারোপের সময় না, এখন আমবাড়ি চা বাগানের মজদুর এখন অসহায় আছেন, ওনার ম্যানেজমেন্ট চলে গেছে, মজদুরের পক্ষে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে, মজদুরের সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। গভর্নমেন্ট তৎপর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমবাড়ি চা বাগানের মজদুরের সাথে সবসময় ছিল, আছে, থাকবে। आज यहाँ पर आप लोग विक्षोभ दिखा रहे हैं, क्या बात है? बागान तो बंद है। हम लोग का आज जो ऑल ऑपरेटिंग यूनियन गार्डन का जो हम लोग एक साथ गेट में आके जो विक्षोभ प्रदर्शन हम लोग का हो रहा है, इसका विशेष मूल्य कारण आपका ये है कि बीते 10 तारीख हम लोग एडिशनल लेवल कमिश्नर जलपाईगुड़ी बैठ के हम लोग का जो बागान का बंद का विषय जो था, इस विषय में हम लोग का लगभग 3 से 3.5 घंटा का लंबा मीटिंग चला। इस मीटिंग में मालिक पक्ष से कोई भी उपस्थित नहीं थे, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई मालिक का ऑनर ऑथराइज वाला कोई भी वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। फिर भी हम लोग का दो पक्ष का एक सौहार्दपूर्ण बढ़िया मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हम लोग का मजदूर का एक ही कहना है, आप किसी भी हाल में बागान को खुलवाइए। यहाँ 1200 परमानेंट वर्कर, 600 बीघा वर्कर इंक्लूड आप 2000 समथिंग लेबर यहाँ पर काम करते हैं। अभी आपका 8 तारीख बंद, आज 13 तारीख, 5
12 तारीख रेगुलर आपका 4 दिन का ये बंद चल रहा है। हम लोग चाहता है बगान का जो हाल है, अभी हम लोग विजिट करके देखे हैं, बगान का स्थिति को भी देखे हैं, फील्ड में जाके भी देखे हैं। अभी भी बगान 10 से 15 तक का 10 से 15 हज़ार तक का क्रॉप ला सकता है। बगान में इतना पत्ती है जो कि अभी बर्बाद होने का कगार में है। और जो नया नया सेक्शन, बढ़िया सेक्शन है, वो सब सेक्शन में भी पत्ती आके तैयार है। हम लोग चाहते हैं मालिक पक्ष इसको ध्यान दे, बगान बर्बादी के कगार में ना जाए, बगान को भी बचाना भी है और आगे इसको खोल के अच्छा तरीके से चलाना भी है। तो अभी से अगर यदि हम लोग बगान में ध्यान देना शुरू करते हो, ये बगान बहुत ऊपर तक जाएगा, आगे तक जाएगा। इसलिए हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारा बगान जल्द से जल्द खोल दिया जाए और खुलाने का प्रयास किया जाए। आपका नाम? हमारा नाम सूरज विश्वकर्मा, हम TCBSU आंबड़ी यूनिट का सेक्रेटरी। हम लोग का जो 26 तारीख को जो हम लोग एनुअली बैठे थे, एनुअली बैठने के बाद में हम लोग 8 तारीख निकलना था। तो 8 तारीख निकलने के बाद में हम लोग को साथ साथ में कामजारी हो गया था। कामजारी होने के बाद में हम लोग को किसी को भी जानकारी नहीं था, जो जिस तरह से यहाँ से मैंने रातों रात मैनेजर भाग गया हो गया। भागने के बाद में हम लोग को जानकारी हुआ कि बगान बंद हो गया। बगान बंद होने के बाद में यहाँ पे एक तो अशांति क्रेडिट हो गया कि बगान बंद हो गया। किंतु हम लोग को अभी हम लोग जब बगान में घूर के देखने के बाद में देखते हैं बगान में पत्ती है, पत्ती है, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन हम लोग का दोष क्या है, जो मैनेजर आज में बगान को छोड़ के चले गए। हम लोग को यही जानकारी है, जहाँ यूनियन से या वर्कर से क्या दोष ऐसे हम लोग कर दिए जो बगान को छोड़कर जाना पड़ा। हम लोग अगर दोषी हैं तो हम लोग का बोलने का काम है कि हम लोग को जब एनुअल लीव बैठने बोले तो हम लोग एनुअल लीव बैठे। हम लोग तो कभी भी तर्क नहीं किए कि हम लोग नहीं बैठेंगे बोल के। लेकिन भी उन लोग का हर चीज़ हम लोग कोऑपरेट करते हुए हम लोग आते हुए हम लोग का आज में ऐसे अवस्था कर दिया। यहाँ का जितना भी मजदूर है, वो मजदूर का मुख में माटी डाल के मैनेजर चला गया, बगान बंद कर दिया। अभी हम लोग का अवस्था ऐसे हो गया, अभी काम दाम कुछ नहीं है, बगान बंद हो गया। अभी हम लोग चाहते हैं कि तो सरकार का तरफ से भी हम लोग को सहूलियत मिले, जो कि हम लोग का जो परिवार है वो परिवार का कम से कम भरण पोषण हो सके। क्योंकि अभी जितना भी बगान है, हम लोग का बगान का वर्कर है, हम लोग का कोई यहाँ पर ऐसी जगह नहीं जहाँ पर जाके आप लोग रोजी रोटी कमाने के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं, सरकार से भी गुजारिश करते हैं और मालिक को भी बोलते हैं कि आप कम से कम आके सरकार से या मालिक से वो बैठने के बाद में जो भी हम लोग को जो है बगान किस तरह से खोलना पड़ेगा वो खोलना चाहिए। और हम लोग का जो डिमांड है वो डिमांड को पास करना, क्योंकि हम लोग का डिमांड जो है नाजायज़ डिमांड नहीं है। क्योंकि हमारा हक होता है कि हम कमाने के बाद में हमको हाजिरी लेना, भी एक्सीडेंट हाजिरी भी लेना, एक्सीडेंट होता है उसको भी हाजिरी देना है। बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो धीरे धीरे तक काटते चला गया, काटते इस तरह से काट दिया। हम लोग का अभी जो पावना है वो भी नहीं मिल रहा था। और हम लोग कभी भी हम लोग को उसका ऊपर में प्रेशराइज नहीं किया जी चलो बगान का परिस्थिति ख़राब है, आज ना कल में बगान ठीक होने के बाद में हम लोग को देगा। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह से होता है, धीरे धीरे देखते हैं स्कूल बस भी बंद कर दिया गया। स्कूल बस बंद करने के बाद में यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर हो गया स्कूल बस। तो स्कूल बस अगर बंद कर देते तो हम लोग का तो बच्चा सबको पढ़ाना लिखाना है ना। अगर हम लोग ही बच्चा सबको नहीं पढ़ा लिखा सकेगा तो बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा, तो आगे हम लोग का बाल बच्चा को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। बस यही हमारा कहने का यही आता है कि आज में बगान बंद हो गया, लेकिन बगान बंद हुआ किस लिए हुआ, हम लोग को भी जवाब देने पड़ेगा कि हम लोग कौन सा ऐसे गलती कर दिया जो बगान बंद करके चला गया। आपका नाम? मेरा नाम हेमशंकर बड़ाई, BTW का सेक्रेटरी। तो आपका नाम? मेरा नाम सबित लोहार, मैं चाय बागान मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड अभी जो अचानक बगान जो बंद करके मैनेजमेंट भाग गया विदाउट नोटिस का, हम लोग इसका लेकर के थाना में भी हम लोग जानकारी दिए। बीते 10 तारीख का लेबर कमिश्नर के ऑफिस में हम लोग का मीटिंग था, साथ में लेबर कमिश्नर हम लोग को मीटिंग बुलाया। उसमें DBIT चेयरमैन भी थे, लेकिन DBIT चेयरमैन का भी एक ही कहना है, हमको भी कोई बात मालूम नहीं है, कोई नोटिस नहीं है और हमको बिना जानकारी दे करके मालिक लोग चला गया। DBIT चेयरमैन DLC ऑफिसर जो है, DLC ऑफिसर का भी कहना है जो इस तरीके से मालिक लोग का जो व्यवहार हो या मैनेजर लोग का, ऐसा बगान हम लोग नहीं देखे थे, ऐसा मालिक नहीं देखे थे। हम लोग बार बार उन लोगों को जैसे सुने, हम लोग बीते 8 तारीख ना 8 तारीख जो बगान जो मैनेजर लोग जो बंद करके चला गया, हम लोग साथ में मैनेजर लोग को कांटेक्ट करने का चेष्टा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मैनेजर लोग
कोई किसी सब मैनेजर का मोबाइल स्विच ऑफ है, मैसेज कर रहे हैं, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं है। उसके बावजूद भी आपका 9 तारीख का डीबीआईटी चेयरमैन को उन लोग फ़ोन करके डीबीआईटी चेयरमैन को 9 तारीख मैनेजर को लेकर के एक ठो सिटिंग बुलाए थे, वो सिटिंग भी उन लोग नहीं गए। 10 तारीख का जो लेबर यूनियन के साथ में जो फिर सिटिंग बुलाया गया, उसमें भी उनका तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। इस तरीक़े से बगान के छोड़ के चला जाना। आज बगान हम लोग का हरा भरा है। बगान में कोई किस्म का यूनियन का ट्रेड यूनियन का तरफ से कोई किसी का आंदोलन नहीं था, कोई उन लोगों को कोई अशांति नहीं किया गया है, कोई छेड़खानी नहीं। उन लोग जो बीते 26 तारीख को जो एनुअल लीव बैठने के लिए बोला 10 दिन के लिए, हम लोग उस दिन डीबीआईटी बैठे थे। उस दिन भी मालिक पक्ष का एक मैनेजर बैठा था, लेकिन वो मैनेजर के पास कोई उनका जवाब नहीं था। हमारा पास हेड ऑफिस का अलावा हम कुछ बात नहीं बोल सकते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस बोलेगा हम वही कर पाएंगे। उस बीच में डीबीआईटी चेयरमैन से बात हुआ, जो हम जिम्मा लेते हैं आप लोग का हेड ऑफिस का साथ में हम एक ठो सीटिंग का अरेंज कराते हैं, और आप लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी का तरफ से जो बगान का एसनो जो दे सकेगा, उनका साथ में आप लोग का मीटिंग हम लोग आगामी महीना 20 तारीख के अंदर में हम लोग कराएंगे। लेकिन वो 26 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 10 दिन कंटिन्यू एनुअल लीव बैठने के बाद में 8 तारीख जिस समय हम लोग सभी मजदूर को काम जारी भी किया गया 7 तारीख को। 8 तारीख सुबह देखते हैं कोई मैनेजर नहीं है, बगान इन लोग छोड़ के चला गया, कोई नोटिस बोर्ड में नोटिस नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द बगान खुले। मालिक है तो मजदूर है, मजदूर है तो मालिक है। अभी उन लोग का इतना प्रॉपर्टी है, बगान हरा भरा है, कोई बगान में हमारा गाछ खराब नहीं है। उन लोग आकर के जो भी उन लोग का समस्या है, कोई भी सवाल है, हम लोग चाहते हैं जो लोग टेबल में आए, टेबल के माध्यम से टेबल टॉक के द्वारा कोई भी समस्या समाधान होता है, और हम लोग का बगान भी ज़रूर इस समस्या का समाधान होगा। हम लोग यही चाहते हैं जो मालिक पक्ष जल्द से जल्द कोई मीटिंग में कोई टेबल में आए, मीटिंग का अरेंज करे। हम लोग का लेबर कमिश्नर जो बार बार उन लोग से कांटेक्ट करने का चेष्टा कर रहे हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करें, मीटिंग का एक डेट फिक्स करके कोई भी जो उन लोग का सवाल है, समस्या है, उसको ज़रूर हम लोग उस पर ऊपर विचार करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सबित लोहार, मैं CBMU से जनरल सेक्रेटरी। बंद हुआ 4 दिन हो गया। 10 तारीख बैठक हुई, बैठक भी बेनतीजा बाहर हुआ। तो आगामी रणनीति क्या बनाए हैं आप? कुछ रणनीति बनाए हैं आप लोगों ने? अभी हम लोग 4 यूनियन हैं, चारों यूनियन का हम लोगों का सबका मत तो एक ही है, क्योंकि बगान हम लोगों को किस तरीक़े से हम लोगों का बगान को खोलना है, और कैसे करके हम लोगों को बगान में जो भी वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए सहूलियत जो भी सरकार के द्वारा मिले या कंपनी अपने तरफ से दे सके, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसी सब विषय लेके। आप जैसे कि उस दिन बगान बंद हुआ, हम लोगों को 10 तारीख में हम लोगों को LC का मीटिंग बुलाया गया था। हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर गए थे, लेबर कमिश्नर से बात भी किए। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए। हमारे कंपनी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कब तक उनका आएगा रिज़ल्ट, ये तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश में हैं और आशा कर रहे हैं कि हम लोगों का जल्दी से जल्दी हो। अब जितना दिन बगान नहीं खुलता है तब तक हम बोले हैं कि हम लोगों का बगान में जितना भी वर्कर है उन लोगों के लिए कुछ सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ से आप कर सकते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि बगान जितना दिन भी बंद हो, लेकिन आदमी को तो भूख तो हमेशा लगता ही है, खाने के लिए तो समय अनुसार चाहिए ही चाहिए। तो इस अनुसार से हम लोग बोले हैं, आप देखते हैं, बोले हैं कि करेंगे बोल के, और जो भी रणनीति बोल रहे हैं सो प्रोसेस में ही चल रहा है। अब हम लोगों का इंतजार में है। बगान जल्द से जल्द खोले? हम लोग तो चाहते हैं बगान से जल्द खुले, क्योंकि बगान में पत्ती इतना सुंदर आया है, इतना अच्छा। जब पूरा बगान काला था तब हम लोगों को साल छुट्टी बिठा के रखा, हम लोगों ने माना, जैसा बोले वैसा हम लोगों ने किया। अभी बगान में इतना सुंदर पत्ती आया हुआ, अभी पत्ती खराब हो रहा है, तो ये तो हम लोगों का गलती नहीं है ना, ये तो मैनेजमेंट का गलती है। जब पत्ती आया है, जब हम लोग को कामदारी दिया गया, काम में बुलाया गया, तो वो लोग को जाने का क्या दरकार था? अगर गया भी तो कुछ तो बात करता। बात करने से तो हर चीज़ का सोल्यूशन निकल आता है। जब उससे पहले हम लोगों से बात किया, हम लोगों ने माना, हर डिसीजन में वो लोगों का साथ दिया, बगान का अच्छा करने के लिए, लेबर का अच्छा करने के लिए। तो क्या इस बार हम लोग नहीं मानते? लेकिन हम लोगों से एक बार पूछना, जानकारी देना तक वो लोग ज़रूरी नहीं सोचा, और बगान को इस अवस्था में, हम लोग इस अवस्था में लाके हम लोग को छोड़ दिया। अभी बगान इतना सुंदर पत्ती है, अभी देखिए ना हम लोग उसको तोड़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं।
तो बगान तो ऑटोमेटिकली कंपनी ही ख़राब करके जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम रेशमा पढ़ाई है, मैं NEPW की सेक्रेटरी। सही है।